ڈی کشر احساس کشمیر. نمسکار، آداب ناظرین. آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں میں ارجمند علی خان آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کے شمارے میں ہم پاکستان میں بڑھتے دہشت گردانہ حملے اور گہراتے سیاسی و معاشی بحرانوں سے جڑی خبروں پر تفصیلی رپورٹس دکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف غم و غصے کی لہر کے علاوہ ہفتے بھر کی چنندہ خبریں بھی پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے شمارے کی سرخیوں پر. دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہا پاکستان. معاشی بدحالی میں پیٹرول ڈیزل میں بھاری اضافے پر بھڑکے پاکستانی باشندگان. اور پاکستانی سیاست میں بڑھتی فوجی مداخلت سے فکر مند جمہوری سیاستدان. سب سے پہلے بات پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی، جو اب خود پاکستان کے لیے بوال جان بن گئی ہے. یہ سچائی پاکستان کے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کی جانب سے پشاور کی مسجد میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش دھماکے سے سامنے آئی. اس خوفناک خودکش حملے میں 100 سے زیادہ پولیس اہلکار جاں بحق اور 200 کے زخمی ہونے پر پورے پاکستان میں ہاہاکار مچ گیا. یہ جو دہشت گردی ہے، اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے. دیر آیت درست آیت. آخرکار پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے زمینی سچائی کا اعتراف تو کیا، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا یہ اعتراف تب کیا جب ریاستی سرپرستی میں پالے پوسے گئے طالبان دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں خوفناک خودکش حملہ کر کے پورے پاکستان کو دہلا دیا. کیونکہ اس خودکش دھماکے میں 100 سے زیادہ پولیس اہلکار جاں بحق اور 200 شدید طور پر زخمی ہونے سے ہر طرف ہاہاکار مچ گیا. لیکن پاکستان میں رنج و غم، پچھتاوے اور بدحواسی کے عالم میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مسجدوں میں بے گناہ نمازیوں کے بہیمانہ قتل عام کے دستور پہلی بار ایک اور تلخ حقیقت تسلیم کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. ہندوستان میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. نہ اسرائیل میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہماری بنیاد رکھی گئی ہے. کیا ہمارے اعمال جو ہیں جس بنیاد پہ ہماری مملکت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مطابق ہے؟ کیا کوئی دور کا بھی رشتہ ناتا ہے اس کلمے کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ؟ میں پھر کہوں گا کہ نمازیوں کے اوپر مسجد کے اندر عبادت کے وقت جو ہے قتل عام جو ہے نہ ہندوستان میں ہوتا ہے نہ اسرائیل میں ہوتا ہے جو دشمن ہیں ہمارے. پشاور مسجد میں طالبان دہشت گردوں کے خوفناک خودکش حملے کے لیے ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت فوجی تاناشاہوں کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، دوسری طرف خود پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ اعلیٰ افسران تک پشاور حملے کے پیچھے فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہونے کی تصدیق کرتے رہے. فوجی افسران کا یہ کہنا ہے، جو حاضر سروس فوجی افسران جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے، سینئر کا،
کہ یہ جو ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے وہی امپلیمنٹ کیا گیا ہے پشاور کے اندر. اپنے ہی ایجنسیز نے کس طرح دھماکہ کروانا ہے اور کس طرح اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اور فائدہ کیا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کروانا ہے, جو آپ کا وزیر دفاع بھی کہہ رہا ہے, نون لیگ کے مختلف لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں, بہانہ بنانا ہے اور بہانے بنا کے الیکشن ڈیلے کروانا ہے. اور یہ بات آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے یہ بھی کرتے رہے ہیں بات سیاستدان. لیکن یہ اب میں آپ کو مصدقہ جو میرے فوجی افسر حاضر سروس ذرائع ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپریشن اس طرح سٹاف کالج میں باقاعدہ طور کے اوپر پڑھایا جاتا ہے, لیکن دشمن ملک کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ آؤٹ کم, اپنا سیاسی آؤٹ کم لینا ہے دشمن ملک کے اندر, فاکس لینڈ کے اندر. تو کے پی کے کو بھی آج کل دشمن ملک ہی سمجھا جا رہا ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے, کیونکہ عمران خان کو وہ دل و جان سے چاہتے ہیں. یقیناً خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان کی مسجدوں میں جس قدر نمازیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, خدا کی عبادت گاہوں کی در و دیواریں بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہو رہی ہیں. دراصل یہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی خارجہ پالیسی کا ہی خمیازہ ہے. تبھی تو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے فریبی کردار کے چلتے افغانستان میں طالبان حکومت بحال ہونے پر عمران خان کی سابقہ کٹ پتلی حکومت خوشیاں مناتی رہی. لیکن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پڑوسی ملکوں سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کے منچ سے کافی پہلے ہی اس بابت آگاہ کر دیا تھا. ہمیں اس بات کے لیے بھی سترک رہنا ہوگا کہ وہاں کی نازک استھتیوں کا کوئی دیش اپنے سوارتھ کے لیے ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سمے افغانستان کی جنتا کو, وہاں کی مہیلاؤں اور بچوں کو, وہاں کی مائنورٹیز کو مدد کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں اپنا دائتو نبھانا ہی ہوگا. پوری دنیا اس سچائی سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI افغانستان میں قتل و غارت گری کے لیے طالبان دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ چلاتی رہی, اور پھر افغانستان سے لوٹے TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ عمران خان کی کٹ پتلی حکومت میں سیز فائر ڈیل کر کے ان دہشت گردوں کو قبائلی علاقوں میں دوبارہ بازآباد کرتی رہی. لیکن پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے طالبان دہشت گردوں کی غیر آئینی شرطیں ماننے سے انکار کرنے پر TTP نے جنگ بندی معاہدہ ختم کر دیا, اور اس کے بعد پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں سمیت دارالحکومت اسلام آباد کو طالبان دہشت گرد خوفناک حملوں سے دہلا کر ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں حکمران اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی میں لگی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ لوگ کیوں لائے گئے, اور آج بھی جس طرح مذمت کی جانی چاہیے اس واقعے کی, اس طرح کی آواز نہیں آ رہی. اس میں بھی سیاسی مسلط سے کام لیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ساری قوم کو متحد ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف, پھر دہشت گردی کا مقابلہ ہوگا. یہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک طبقے کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی جنگ ہے, یہ ساری قوم کی جنگ ہے. یہ کسی ایک مذہب کی جنگ بھی نہیں ہے. یہاں پہ دہشت گردی کے شکار جو ہیں ہماری اقلیتیں بھی ہوئی ہیں. ہم نے آپس میں فرقوں کی لڑائی جو ہے
जो सारे मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे की इबादत गाहों को जो है उड़ाया है। जो लोग जख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं यार, 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं यार, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा चुके हैं यार, उनके जनाजे उठे हैं। आप इतना इंतजार नहीं करते कि उनका खून खुश हो जाए यार? आप सियासत के ऊपर के इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप क्यों इस किस्म के हालात, इससे सवाल जन्म नहीं लेंगे? सवाल जन्म ले रहे हैं। इस आग को और इस तपिश को महसूस करो, जो नफरत है, जो सवाल आप लोगों के ज़हनों में पैदा कर रहे हो, इसको महसूस करो। मैं जरा खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान होगा, खुदा के लिए ये चीजें ना करे, अपने मुल्क को देखे यार, फिर से उस तरफ ना जाए। अभी भी हालात ठीक है, हो सकते हैं। मलाकन डिवीजन के लोगों ने बचाया, उन्होंने खुद खड़े हो गए। पेशावर डिवीजन के लोगों, खुद खड़े हो जाओ। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में टीटीपी के दहशतगर्द पिछले बरस 2022 से अब तक सैकड़ों हमले कर चुके हैं और इन हमलों में पाकिस्तान की हिफाजती एजेंसियों के सैकड़ों एहलकारों को खास तौर से निशाना बना चुके हैं। लेकिन 30 जनवरी 2024 को पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाके में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कत्ल करके टीटीपी के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरह तालिबान हुकूमत कायम करने की खतरनाक मंसूबाबंदी पूरी तरह वाज़ेह कर दी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की लाशों पर सियासत की फरेबी हिकमत अमली को लेकर तालिबान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों के बाशिंदे आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन की मांग कर रहे हैं। दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले और सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को कंगाली के दहाने पर ला दिया है। तशवीशनाक पहलू यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक तक ने पाकिस्तान की माली मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। लिहाजा मरता क्या न करता जैसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत IMF से कर्जा लेने के लिए गिड़गिड़ा रही है और IMF की शर्तें पूरी करने के लिए आए रोज गरीब आवाम पर महंगाई के बम फोड़ रही है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत IMF से कर्जे की डील मुकम्मल होने का भरोसा तो दिलाती रही, लेकिन दिवालियेपन जैसे हालात से दो चार शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से महज 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जे की किश्त हासिल करने से पहले पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का ऐलान करके पहले से रोजी रोटी से महरूम गरीब आवाम के सर पर महंगाई का एक और एटम बम फोड़ दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 35 रुपए फी लीटर से ज्यादा के इजाफे के हुकूमती फैसले ने गरीब आवाम में गम गुस्से की आग मजीद भड़का दी, क्योंकि मुआशी बदहाली के आलम में पाकिस्तान में पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर फरोख्त होने से बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब लोगों का जीना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। परेशानी है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारी पहुंच से तो बाहर हो गया। अब बेहतर यही है कि हम तो खड़ी करेंगे गाड़ी, जब बचेगा ही नहीं कुछ तो फायदा क्या चलाने का। अब जब देखेंगे कोई अगर मिल गया, नहीं तो भाई नौबत तो यहाँ आ गई है कि भीख मांगना पड़ेगी। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा कि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत की बौखलाहट में इमरान खान की साबिका हुकूमत को बरतरफ किया गया और फिर कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने के बुलंदों बांग वायदे करके इख्तिदार पर काबिज किया गया। लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत वाली 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान को 10 महीने में ही
दिवालियेपन के दहाने पर ला दिया है। नतीजतन पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और बेकाबू महंगाई से अजीरन गरीब खानदान 2 वक्त की रोटी तक से महरूम हो चुके हैं। आगे से जो ना आटा महंगा है और जो ना जितनी भी खाने पीने की अशियाएं महंगी हैं, गरीब आदमी की जो ना तनख्वाही वहीं की वहीं है, तो गरीब आदमी का जीना आराम हो गया है। देखो आप इंसान क्या करे, आप जो ना ऊपर से पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल की वजह से जो ना सारा कुछ हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया हर चीज़ महंगी की भी है। गरीब आदमी की तनख्वाही वहीं की वहीं है, हर बंदा इतना परेशान किया हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान में दाने दाने के लिए मोहताज गरीब आवाम फरियाद करें तो किससे करें। रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश खुसूसन आटे की शदीद किल्लत की वजह से वो भूखे प्यासे रहकर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर अपनी जान जोखिम में तो पहले से डाल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद तो सरकारी यूटिलिटी सोर्स पर सब्सिडी पर मिलने वाली हर जरूरी अशिया की कीमतें भी इस कदर आसमान पर पहुंच चुकी हैं कि अब उन्हें खरीद पाना आम लोगों की कुव्वत से बिल्कुल बाहर हो चुका है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का खामियाजा भुगत रहे लोगों का कहना है कि रोजगार, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना तो वो गुज़श्ता 75 बरसों से कर रहे थे, लेकिन अब तो वो अपने बच्चों को रूखी सूखी रोटी तक के लिए तरस से देखकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे के लिए उठी आवाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखे खत में पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर गहरी तशवीश जाहिर की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने खत में पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे गैर जमहूरी हरबों पर हुकूमत से वजाहत तलब करने की अपील की। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों ने भी ARY समेत मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स के मालिकान के खिलाफ गद्दारी के झूठे मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद समेत कई शहरों में शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान की इख्तिसादी व सिंध सूबे की राजधानी कराची के किमाड़ी इलाके में जहरीली गैस की वजह से बच्चों की शरह अंबात बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में एक बच्चे की मजीद मौत होने पर पुलिस ने वजूहात जानने के लिए बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ सिंध एनवायरनमेंट एजेंसी ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कराची के किमाड़ी इलाके में माहौलियाती आलूदगी और जहरीली गैस की वजह से बच्चों की पुरअसरार अंबात की तरदीद की गई और बच्चों की अंबात की तहकीकात के लिए माहिरीन माहौलियात की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की बात कही गई। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF के साथ कर्जे की डील जल्दी मुकम्मल होने का दावा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मंसूबे की इब्तिदाई तकरीब के दौरान चीन को सच्चा दोस्त बताया और पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से पैदा शुदा संगीन हालात के लिए इमरान खान की साबिका हुकूमत को कसूरवार ठहराया। लेकिन पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले फी डॉलर 7 रुपए 57 पैसे के इजाफे ने खोखले हुकूमती दावों की पोल खोल दी। पाकिस्तान के ओपन बाजार में डॉलर की कीमत 265 से ज्यादा होने पर अपोजिशन जमात PTI के लीडरान खुसूसन साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार पर जमकर सियासी तनकीद की। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी और उनकी हामी सियासी जमातों के लीडरान की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया है। ये सच्चाई पाकिस्तान में इमरान खान की साबिका हुकूमत में वजीर रेलवे और वजीर दाखिला रहे शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में गिरफ्तारी से सामने आई। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को रावलपिंडी में उनकी रिहाइश गाह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की टारगेट किलिंग के लिए कातिलों को रकम देने के इल्जामात लगाए जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान शेख रशीद को नशे में धुत बताया गया। लेकिन शेख रशीद और खुद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने रात के अंधेरे में की गई गिरफ्तारी को सियासी इंतकामी कार्रवाई बताया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डेरा इस्माइल खान के हंगामी दौरे के दौरान
PTM के सियासी कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरों का सामना करना पड़ा। PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी कारकुन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पार्लिमानी लीडर अली वजीर की रिहाई के अहकाम सादर करने की मांग करते रहे। मीडिया जराये के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डेरा इस्माइल खान की पुलिस की जानिब से अली वजीर के खिलाफ दायर किए गए झूठे मुकदमे पर सुनवाई के लिए वहां पहुंचे थे। PTI के कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अली वजीर को बेल दिए जाने के बावजूद फौज और खुफिया एजेंसी ISI रिहाई में रुकावटें डाल रही है। लंदन से पाकिस्तान लौटने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सियासी रैलियों का सिलसिला तेज कर दिया है। रवां साल 2023 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं और आइंदा आम इंतखाबात से पहले मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद नवाज शरीफ ने हुक्मरान जमात PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर का खुसूसी ओहदा देकर इंतखाबी मुहिम की कमान सौंपी है। यही वजह है कि मरियम नवाज अपनी पार्टी के सियासी गढ़ रहे पंजाब सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी रैलियों में इमरान खान की साबिका हुकूमत की 4 बरसों की हुकूमती नाकामियों पर हमले कर रही हैं और पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली और दहशतगर्दी के लिए इमरान खान की साबिका हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती बर्बरियत को लेकर भड़की गम गुस्से की आग का। पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज्यादतियों ने बलोच, पश्तून और सिंधी समेत तमाम महकूम कौमों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अलहदगी की बढ़ती मांग को लेकर जमहूरियत पसंद लीडरान बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। ये कहते नहीं तकते हमारे हुक्मरान कि बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, बलोच नौजवान दहशतगर्द हैं। महीने में 10-10 नौजवानों के लाश गिराया जाता है। जो टाउट उन्होंने रखा है उनके वकालत करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आया ग्वादर के लोग दहशतगर्द थे? हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, हमारे मुजामत पुरम थी। अक़दो तहरीक से का शुरू से नारा था हमारा मुजामत पुरम ने, हम पीसफुल स्ट्रगल थी। डिमांड हमारे क्या थे? टॉलरिंग, रोजगार तो हमें नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म ज्यादतियों को लेकर बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा सूबों में अलहदगी की लहर जोर पकड़ चुकी है। आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की मुसलसल बढ़ती बर्बरियत ने बलोच और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। ऐसे में बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के कई टुकड़ों में तकसीम होने के बढ़ते खदशात ने दानिश्वर तबके में तशवीश बढ़ा दी है। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खुसूसन जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी सेमिनार शुरू कर दिए हैं। खास बात ये रही कि री इमेजिंग पाकिस्तान नाम से मुनक्किदा इन सेमिनार में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मदाखलत के खात्मे के लिए आवाज उठ रही है। हम दोस्तों ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को दोबारा से नए सिरे से तस्वुर किया जाए, एक ऐसा मुल्क है जिसमें आईन की हुर्मत हो, लोगों का जो आपस में बाहमी मुआहदा है रियासत के साथ, उसमें उनको जो हकूक गारंटी किए गए हैं उन पर अमल हो, उनकी फ्रीडम्स को जुडिशरी अदालतें प्रोटेक्ट करें, माशरे में इंसाफ हो, सियासत आजाद हो, एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो, तो तभी हम अपने मुल्क की मैशत और बाकी मसाइल भी ठीक कर सकेंगे, वरना हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। बलूचिस्तान की जो आज हमने बैठ कर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहे, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत
का ब्रेक डाउन है। एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन में तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेक डाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं दबा। अगर आप हमें इस हद से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हद से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हद से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन है? आज बलूचिस्तान में जिस महफिल में आप जाएं, जिस जगह आप जाएं, कहीं आप संजीदा गुफ्तगू का इनेकाद करें तो सवालात उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। आज क्या वजह है कि हमारे पास उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चियों को, उन बच्चों को जिनके प्यारे कितने कितने साल हो गए उन पर कोई पता नहीं कहां है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनको देने का। अदालतें जिनके जिम्मे ये आईन ने जिम्मेदारी लगाई है कि वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को इस मुल्क में यकीनी बनाएंगे। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।